Hello students, in this video we will practice NCERT exercise problem from the chapter electricity, question number 10 and 11. Number 10 says, how many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? So there is a circuit in which the voltage supply is 220 volt and the current running across the circuit is 5 ampere. You are being asked that how many 176 ohm resistor has to be connected in parallel so that the current withdrawn will be 5 ampere. In very simple language that एक सर्किट है हमारे पास जिसमें वोल्टेज सोर्स 220 वोल्ट है. 220 वोल्ट लाइन में से 5 एम्पियर करंट विड्रॉ करने के लिए हमें 176 ओम रजिस्टर को कितने सारे रजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट करने होंगे. ठीक है. सो बिफोर दैट we will write what is already given. So V is given 220 volt, current is given 5 ampere. Fine. Please don't get confused that this is the resistance of the circuit. This is not the resistance. This is just the resistor, rating of the resistor, and that resistor has to be connected in parallel with the circuit in order to get 5 ampere of current. We have to find out this resistance, that what is the resistance of the conductor of the circuit. Overall सर्किट के वायर की क्या रेजिस्टेंस है वो हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे कि 5 एम्पियर करंट विड्रॉ करने के लिए 220 वोल्ट लाइन में से वायर की रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए. ओके, सो वी विल फर्स्ट कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. सो फ्रॉम ओम्स लॉ वी कैन फाइंड दिस वेरी इजीली. V is equal to I into R. R will be V upon I. V is given 220, I is given 5 ampere. So from here we will get the resistance of the wire equal to 44 ohm. 220 वोल्टेज सप्लाई में से 5 एम्पियर करंट विड्रॉ करने के लिए हमें 44 ओम रेजिस्टेंस की ज़रूरत होगी. ठीक है. नाउ वी विल कम अक्रॉस दिस रजिस्टर कि एक रजिस्टर हमारे पास गिवन है, वैल्यू ऑफ दैट रजिस्टर इज़ 176, बट हमें टोटल रेजिस्टेंस 44 ओम पाने के लिए 176 ओम रजिस्टर को पैरेलली कितने सारे रजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे कि 44 ओम रेजिस्टेंस हमें मिल जाए. ठीक है. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द सर्किट डायग्राम कि एक हमारे पास ये एक सर्किट है और यहाँ पे हमें like this we have to connect number of resistors. How many resistors we don't know. Okay, this is my 220 volt line. ये हमारा 220 voltage supply है और 5 ampere current इस सर्किट के अराउंड this circuit is carrying 5 ampere of current. Okay, और भी resistors connect होंगे but कितने सारे होंगे we never know. That we have to find out. This is 176, this is also 176 ohm according to the question. But the question says 176 ohm resistance कितने सारे होने चाहिए. ऐसे बहुत सारे resistance हो कनेक्ट किए जा सकते हैं, but you have to find out how many resistors has to be connected. Now from the formula of parallel combination of resistances we know that 1 by Rp, that is resistance in parallel, is equal to reciprocal sum of individual resistances. Okay, that is 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3 till n times, right? Okay, now what is R1, R2, R3? This we have done previously also during the derivation of combination of resistances. So here R1, R2, R3 is equal because we are given with 176 ohm resistor. सारे ही resistor की rating क्या है, 176 ohm है. ठीक है. So instead of writing R1, R2, R3 we can simply write 1 by R. Okay. Now how many resistors has to be connected? N resistors. Let us consider this as to be N. तो हमने सपोज कर लिया कि n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हम अगर कनेक्ट करें तो हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा 44 ओम.
Okay, if we have 1 by r plus 1 by r plus 1 by r plus 1 by r till n times, because we don't know how many resistor has to be connected, हमें मालूम ही नहीं है, तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं n नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्ट करना है हमें, हम x y z कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो अगर 1 by r ही कंटिन्यूसली सम अप हो रहा है तो कैन वी राइट दिस एज 1 by r into n? Yeah, because the same term is getting added up again and again, so that will be 1 by r into n. So that is what I have written here, that 1 by r into n should be the combination in the formula. Now what is rp? rp we have just calculated equal to 44 ohm, that is the overall resistance of the circuit connected in parallel, so that is 44 ohm. So here we can write in place of rp equal to 44, and now 1 by r into n could be written as n by r, right? What is r? R is given 176, so we can write here 176 ohm. Fine. Here we have to find out n. What is n? N is number of registers. Okay. और हमें यहाँ से n बड़ी ही आसानी से मिल जाती है, that is by cross multiplying 176 divided by 44. This will cancel out by 4 times and it will give us 4. So n comes out to be 4. That means that अगर हमारे पास 176 ओम के 4 रजिस्टर्स हों और अगर उन चारों रजिस्टर्स को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो हमें ओवरऑल रेजिस्टेंस 44 ओम मिलेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द करंट विल बी 5 एम्पियर रनिंग अक्रॉस 220 वोल्ट लाइन। हम चेक भी कर सकते हैं। सो अगर ऐसा हो हमारा कॉम्बिनेशन, ये सारे 176 ओम के रजिस्टर्स हैं, ओके, इसका आप अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो ये देगा 176, and that will be 1 by rp will be equal to 176 4, रेसिप्रोकेट कर दीजिए, rp will be equal to 176 divided by 4, that is equal to 44 ohm, right? तो 44 ओम हमें कब मिल जाएगा ओवरऑल रेजिस्टेंस? जब हमारे पास 176 ओम के 4 रजिस्टर्स होंगे और जब हम उन्हें पैरेलली कनेक्ट करेंगे। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 10. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. So question number 11 says, show how would you connect 3 resistors each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm. Okay, so this is a very important question and very interesting at the same time. This question is very often asked in your board papers carrying 2 marks. Let's find out the solution. Okay, so it is given that we have 3 resistors. हमारे पास 3 resistors given है and each resistors are of 6 ohm. Okay, 1 2 3, ये हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं और तीनों रजिस्टर्स हैं 6 ओम के. ओके, आपसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों रजिस्टर्स को हम कैसे कनेक्ट करें कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फर्स्ट केस में 9 ओम मिल जाए और सेकेंड केस में 4 ओम मिल जाए. ओके, तो वी नीड टू अप्लाई द कॉम्बिनेशन. बिफोर वी प्रोसीड फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस फॉर दीज 3 रजिस्टर्स, हम पहले सबसे ऑब्वियस कनेक्शन जो होता है वो अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि हमें 9 ओम और 4 ओम मिलता है या नहीं. सो आवर वेरी ऑब्वियस कनेक्शन विल बी या तो हम इन तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट कर दें या तो हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें, या तो 2 पैरेलल 1 सीरीज़ या फिर 2 सीरीज़ 1 पैरेलल. दीज आर द पॉसिबिलिटीज़, बट द वेरी ऑब्वियस विल बी either 3 of these resistors in series or 3 of these resistors in parallel. तो चेक कीजिए, अगर हम तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो वी विल गेट व्हाट, 6 ओम प्लस 6 ओम प्लस 6 ओम. सीरीज़ में तो ऐसा ही होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो दिस विल गिव यू हाउ मच, 18 ओम.
तो दिस इज़ नॉट सेटिस्फाइंग आवर आंसर. वी आर गेटिंग 18 ओम, बट हमें चाहिए कितना, 9 ओम चाहिए या फिर 4 ओम चाहिए. सो वी कैन नॉट अप्लाई ऑल दिस 3 रेजिस्टेंसेस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज. ओके, लेट्स फाइंड आउट विथ पैरेलल कॉम्बिनेशन. अगर हम इन तीनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर दे तो क्या मिलेगा हमें. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वी नो रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल सम. सो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, दिस विल गिव यू 3/6 एंड विच विल बी इक्वल टू 1/2. अगेन हमें आंसर नहीं मिल रहा है. दिस इज इक्वल टू 1/2. सो दिस इज नॉट ऑल्सो सेटिस्फाइंग आवर आंसर. So we cannot apply this series and parallel combination for all these 3 resistances. Now let's apply another combination. तो हम क्या अप्लाई करेंगे, 2 को सीरीज और 1 को उसमें पैरेलली कनेक्ट करेंगे. ठीक है, like this. So 2 resistance in series and the third resistance connected in parallel with these 2, right? 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm. Okay, first case I am taking 2 resistors in series and third in parallel with both these resistors. Let's find out. These 2 are in series, तो हमारे equivalent resistance in these 2 for these 2 resistors will be 6 plus 6 which is equal to 12, right? तो इस कॉम्बिनेशन के प्लेस में हम लिख सकते हैं 12 ओम, राइट, लाइक दिस. दिस इज द कॉम्बिनेशन 6 ओम 6 ओम. तो आर सीरीज विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज विल बी 6 ओम प्लस 6 ओम विच इज इक्वल टू 12 ओम, राइट. सो इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट ओवरऑल रेजिस्टेंस इक्वल टू 12 ओम. इसको हमने रिजॉल्व कर लिया. एंड नाउ टू दीज 2 रेजिस्टेंसेस दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल. This is my third resistance. Okay, अब आप देखिए 12 ohm and this is in parallel with 6 ohm. We can find out the equivalent resistance again. 1/12 plus 1/6. How much you will get? By fractional multiplication it will be 3/12. Okay, R equivalent. So R equivalent for this combination will be 12/3. ये हमारा reciprocal हो जाएगा and this comes out to be 4 ohm, right? So we have got our second answer. हमारे पास ये सेकेंड आंसर मिल गया. कैसे? जब हमने 2 रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया थर्ड रेजिस्टर से. ओके, 2 रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड थर्ड रेजिस्टर्स इन पैरेलल. फाइन. ओके, नाउ लेट्स डू दिस अगेन. We will just reverse this combination. अब हम क्या करेंगे, 2 resistors in parallel like this. 2 रजिस्टर ऐसे पैरेलल में और तीसरे रजिस्टर्स को हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे. We are doing here case 1, right? This was case 2. Okay, so 2 resistors 6 ohm 6 ohm. इन दोनों को हमने सॉर्ट करके पैरेलल में कनेक्ट किया है. ये थर्ड रेजिस्टेंस हमारा इन दोनों रजिस्टर से सीरीज में है, राइट. तो इनको आप सॉल्व कीजिए क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है. तो 1/6 प्लस 1/6 दिस इज इक्वल टू 2/6 एंड दिस विल बी इक्वल टू RP, यू नो, विल बी इक्वल टू 6/2 विच इज इक्वल टू 3 ओम. फाइन. सो इन प्लेस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन वी कैन राइट व्हाट 3 ओम, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके हमें कितना मिला 3 ओम. So our new combination will be like this. इसके प्लेस में हम 3 ओम लिख देते हैं और ये है हमारा थर्ड रेजिस्टेंस 6 ओम, राइट. अब आप देखिए दिस इन दिस कॉम्बिनेशन वी हैव दीज 2 रेजिस्टर्स नाउ इन सीरीज. तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल एडिशन करेंगे, दैट इज़ 3 ओम प्लस 6 ओम और हमें यहाँ से मिल जाता है 9 ओम. सो आवर फर्स्ट पार्ट इज ऑल्सो डन. सो वी गॉट 9 ओम रेजिस्टेंस बाय विच कॉम्बिनेशन. हमने क्या किया, 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल लिया और थर्ड रेजिस्टेंस को उसमें से सीरीज में कनेक्ट कर दिया. सो इन दिस वे वी हैव गॉट द आंसर फॉर दीज 2 केसेस ऑल्सो. हाउ वी डिड दैट, वी हैव जस्ट टेकन आउट द वेरी ऑब्वियस आंसर. हमने कैसे चेक किया,
कि हम या तो पहले चेक कर लेंगे कि तीनों को सीरीज़ में कनेक्ट करके देख लेते हैं और तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करके देख लेंगे. इफ़ वी विल नॉट गेट द आंसर which is given in the question, then we will apply another combination that हम लेंगे 2 को सीरीज़ में, तीसरे को पैरेलल में, या फिर 2 को पैरेलल में, तीसरे को सीरीज़ में. In that way we will see that if it is satisfying our solution or not. So in that way we got the answer for this question by applying the suitable condition for combination of resistances, and this is the answer for question number 11. See you all in our next video with another series of questions. Thank you.